Come with me, 1 Corinthians chapter 1. Let's stand to our feet in reverence of God's word. आए हम अपने कदम पर खड़े हों खुदावन के कलाम की ताज़ीम में, और हम पहला करंथियों उसका पहला बाब और पहली आयत से पढ़ेंगे। Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes, our brother, to the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all who are in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus, that you were enriched in everything by him in all utterance and all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you may come short in no gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end, that you may be blameless in the day of the Lord Jesus Christ. God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ, our Lord. पालूस की तरफ से, जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया है, भाई सोसिथियस की तरफ से खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए हैं और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावन यीशु मसीह का नाम लेते हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। मैं तुम्हारे बारे में खुदा का उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में तुम पर हुआ, हमेशा अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम उसमें होकर सब बातों में कलाम और इल्म की हर तरह की दौलत से दौलतमंद हो गए हो। चुनाचे मसीह की गवाही तुम में कायम हुई, यहाँ तक कि तुम किसी नेमत में कम नहीं, और हमारे खुदावन यीशु मसीह के ज़हूर के मुंतज़िर हो, जो तुमको आखिर तक कायम भी रखेगा, ताकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के दिन बेइल्ज़ाम ठहरो। खुदा सच्चा है, जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। खुदा Amen. Let's pray. Father, I ask in Jesus' name बाप, मैं खुदावन यीशु मसीह के नाम में ये दरख्वास्त करता हूँ that you would touch our hearts today कि खुदावन तू आज हमारे दिलों को छू by the power of your Spirit, अपने पाक रूह के वसीला से, so that it would yield to your word. ताकि ये तेरे कलाम को कबूल कर सके। Lord, we want to grow in you. हम खुदावन तुझ में बढ़ना चाहते We हैं, want to grow in your ways. हम तेरे कामों में बढ़ना चाहते हैं, And so help us through this. और खुदावन हमारी मदद कर। In Jesus' name, amen. यीशु के नाम में आमीन। Please be seated. तशरीफ रखिए। We'll be starting a series through the epistle, through the letter, through the book of Corinthians. हम जो है एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं जो Corinthians. जो करंथियों की खत से शुरू होता है। Now this is going to be a few weeks. और ये चंद हफ्तों के लिए होगा, So I want you to stay with us. और आपको ज़रूर है कि आप हमारे साथ रहें। Stay with us. आप हमारे साथ रहें। I believe God is going to transform us through this. और मेरा ईमान है कि खुदा इसके वसीला से हमें तब्दील करे, Not just individually, ना सिर्फ इनफरादी तौर but as a पर church as well. और कलीसियाई तौर पर। And so let's get started with the background. हाँ, हम इसके एक कुछ पस मंजर से आगाज करते Day हैं। one is usually tough when you start a series. Day one is usually tough when you start a series. जब जो पहला दिन होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है जब किसी सिलसिले का आप शुरू Because you करते have to build the background and you have to bring all those things in context. हैं, और आपको उसके पस मंजर में जाना पड़ता है, फिर उसके साथ आपको उसके साथ उसका ताल्लुक जोड़ना So पड़ता है। I'll try to move very quickly मैं बड़ी तेजी के साथ जाऊंगा, so we can at least get to the text before us. और जो ताकि हम जो है उस इक्तबास को समझ सकें। So Corinth is a very important city. जो करंथ है वो बहुत ही अहम शहर था। It's a major port city. ये जो है एक अहम
बंदरगाह थी। At the time that Paul is writing to them, और जब पालूस ये खत उनको लिख रहा it था, has about 700,000 people that live in it. और उस वक्त उस जगह पर तकरीबन 7,000 लोग रहते This थे। is in the first century that Paul is writing और in. ये मैं जो है पहली सदी की बात कर But रहा हूँ। most of the people there were slaves. और ज्यादातर वो जो लोग थे वो गुलाम थे। So out of the 7,000, 5,000 were actually slaves. 7,000 में से तकरीबन 5,000 लोग जो है वो गुलाम थे। And that leaves about 200,000 those who were actually Romans. और ये जो है वो जो 2 लाख लोग थे वो बाकी रोमन थे। And so on one hand, you've got a lot of goods that are being exported out of Corinth. और एक तरफ जो है बहुत सारी जो है वो बरामद की जा रही थी उस बंदरगाह से। But at the same time, there's a lot of culture and a lot of mixture that is coming into Rome. और इसके साथ साथ जो है दूसरी सकाफत और दूसरी चीजें भी जो है वो रोमन से And इस so जगह this is पर a आ रही। city of mixed cultures. और ये जो शहर है ये जो है वो जो है मिली जुली सकाफत का And शहर so if था। you want to understand it in today's context, अगर वो आज के इस माहौल में इसको समझना it चाहे, would be equivalent to New York, Paris, and London. और ये जो है न्यूयॉर्क, पेरिस या लंदन की तरह This का is शहर था। an extremely immoral city. और ये जो है इंतहाई जो है वो बदकिरदार शहर था। There are 12 pagan temples that are throughout this small piece of land. और इस छोटी सी जगह पर तकरीबन 12 मंदिर थे। One of the major temples was a temple for Aphrodite. और जो है सबसे जो अहम मंदिर था वो एफ्रोडाइट का मंदिर था। She was the goddess of love and sex. ये जो देवी है ये जो है मोहब्बत और जिनसी ख्वाहिशात की देवी थी। At her temple, there were 1,000 plus male and female prostitutes that were employed there. और उसके मंदिर में तकरीबन 1,000 के करीब मर्द और औरतें जो बदकिरदार थे वहां पर रहते थे। So this was a religious house of prostitution. और ये जो है एक मजहबी जो है वो मजहबी जगह थी जहां पर जो है ऐसे गलत काम And होते so prostitutes would just be walking around all over the city. और ये जो हरामकारी है ये पूरे शहर में होती थी। It wasn't that prostitution was legal. और ये नहीं था कि जो है वो जिनसी जो है वो ताल्लुकात जो है वो, Prostitution was the culture. और जो थी यहाँ पे जो प्रोस्टिट्यूशन थी वो जो है वो एक उनकी सकाफत थी। Now Paul comes to this culture to plant a church. और पालूस जो है वो इस सकाफत में आया ताकि एक कलीसिया कायम कर सके। This is where a congregation is birthed. और यही वो जगह है जहां पर कलीसिया की पैदाइश हुई। What a beautiful reminder of God's love for the lost. और क्या ही खूबसूरत खुदा की मोहब्बत है जो हमें इसके बारे में याद कराती है। Many wouldn't want to go in those areas. और हम में से बहुत जो है ऐसी जगहों पर नहीं जाना Many चाहते। wouldn't want to plant a church. और बहुत से लोग शायद चर्च भी यहाँ ना लगाना चाहें। And they were like, no, pastor, get it in the good suburban area. नहीं पास्टर ये जगह ठीक नहीं, किसी और जगह पर चलते हैं। But Paul was instructed by the Holy Spirit to go there. लेकिन पालूस रसूल पाकरू के वसीला से उसकी रहनुमाई की गई थी कि वो उस जगह God पर has जाए। a love for the lost. और हमारा खुदा जो है वो लोगों के लिए मोहब्बत रखता है। Irrelevant of how much of filth they may be in. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने गुनाहगार He हैं। desires to bring them to उसकी himself. ख्वाहिश है कि वो उनको अपने पास लेकर And आए। he moves the hearts of his people to go to them. और उसने जो है लोगों के दुख को उभारा कि वो लोग उसके पास जाएं। What an awesome God we serve. Amen. हम कितने खूबसूरत खुदा की And परस्तिश so करते हैं। Paul comes to Corinth in about 51 AD to plant the church. और जब पालूस रसूल है जो करंथस के शहर में आया तकरीबन 51 ईस्वी का दौर था। And the letter is being written in 56 AD, so और ये जो 5-year gap. और जो ये खत है तकरीबन जो है 56 ईस्वी में लिखा गया जो 5 साल के बाद लिखा गया। So go with me to Acts chapter 18, and this is where we learn about when this church is planted. और मेरे साथ निकालिए अमाल 18 बाब, यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ये कलीसिया कायम की गई। So wherever your Bibles were, just kind of go, make a left turn, a few books back. और जहाँ पर भी आप हैं सिर्फ चंद सफ़े जो हैं अपने उल्टे हाथ की तरफ जाएं तो आपको ये बाब मिल जाएगा। So let me start reading. After these things, Paul departed from Athens and went to Corinth, and he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla. Because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome,
And he came to them. So because he was in the same trade, he stayed with them and worked. For by occupation, they were tent makers. And he rose and he reasoned in the synagogues every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks. When Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit and testified to the Jews that Jesus is Christ. But when they opposed him and blasphemed, he shook his garment and said to them, "Your blood be upon your own heads. I'm clean. For now on, I will go to the Gentiles." And he departed from there and entered the house of a certain man named Justus, one who worshiped God, whose house was next to the synagogue. Then Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord, and all of his household. And many of the Corinthians, hearing, believed and were baptized. Now the Lord spoke to Paul in the night by a vision, "Do not be afraid, but speak and do not keep silent, for I am with you. And no one will attack you or hurt you, for I have many people in this city." And he continued there a year and 6 months, teaching the word of God amongst them. From the first verse. From verse 1 till verse 9. Okay. 11. इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर करंथस में आया और वहां उसको अकूला नाम एक यहूदी मिला जो पैंतुस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिक्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि कलौदीस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। पस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था, उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका पेशा खैमादोजी था और वो हर सबत को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। और जब सिलास और तिमोथियस मकदूनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। जब लोग मुखालफत करने और कुफर बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, "तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर, मैं पाक हूं, अब से गैर कौमों के पास जाऊंगा।" पस वहां से चला गया और तीतस यूस्तस नाम एक खुदापरस्त के घर गया जो इबादत खाना से मिला हुआ था। और इबादत खाना के सरदार क्रिस्पुस अपने तमाम घराने समेत खुदावन पर ईमान लाया और बहुत से करंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। और खुदावन ने रात को रोया में पौलुस से कहा, "खौफ न कर, बल्कि कहे जा और चुप न रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं। कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं।" पस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। Amen. So this is the genesis of the church of Corinth. ये जो है ये करंथस की कलीसिया की पैदाइश है। Paul is going to stay with them for 18 months. और पौलुस रसूल उनके साथ 18 महीने He's रहा। going to mentor them. He's going to discipline them. पौलुस उनको जो है वो उनकी तालीम देने वाला था और उनकी तरबियत करने वाला He's था going to invest his time in them. और वो उनमें अपना वक्त He's going सर्व to कर रहा invest था his energy in और them. वो अपनी जो है ताकत को उनमें इन्वेस्ट कर रहा था। But the church is not growing to maturity. लेकिन जो चर्च है अभी तक जो है वो मैच्योर नहीं हुआ। 5 years ago, Paul plants this church. 5 साल पहले पौलुस ने इस चर्च को कलीसिया को And कायम he's किया writing a letter to them and he's realizing they haven't matured much. और वो जब ये खत लिख रहा था तो उसने ये खत लिखा कि वो अभी तक रूहानी बलूगत में नहीं पहुंचे। This is a corrective epistle, loved ones. और ये जो है ये किसी को दुरुस्त करने का खत है। This is a complicated church we're dealing with. और ये एक मुश्किल चर्च था जिसके साथ वो डील कर रहा था। On one hand, they were exhibiting spiritual gifts, और एक तरफ तो उनके पास रूहानी नेमतें थी and on the other hand, they were very worldly. और दूसरी तरफ वो बहुत जिस्मानी थे। Verse 7 reads that they lacked in no spiritual gifts. और हम 7वीं आयत में हमने पढ़ा कि उनके पास जो है रूहानी जो है नेमतों की कमी ना थी। But in chapter 12, Paul is telling them you're misusing these spiritual लेकिन gifts. 12वें बाब में वो कहता है कि तुम इनका इस्तेमाल जो है वो गलत कर रहे हो। Within the church, there's a spiritual and a worldly environment. और जो है
कलीसिया के अंदर ही एक रूहानी और दुनियावी माहौल था They were mixed up in the church. और वो आपस में इकट्ठे थे And that should never be the case. और ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए. Now in chapter 3, Paul tells them, I have to address you not as spiritual people, but as worldly people. और पालूस जो है तीसरे बाब में कहता है कि मैं जब तुमसे बात कर रहा हूं तो मैं रूहानी लोगों से नहीं बल्कि जिस्मानी लोगों से He बात कर tells रहा हूं. them that I have to treat you like baby Christians. और वो कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं जो है अब जो है बच्चों का ख्याल रख रहा हूं. And he has to point out all of the things that have crept into the church. और वो उन सारी चीजों का उसको भी ये ख्याल था कि वो जो चर्च में आ चुकी थी. There are two reasons why Paul needed to write this letter. और ये दो इसकी वजूहात थी कि पालूस I ने इस have खत them को on the लिखा. screen if you want to take और notes. वो दोनों जो है वो स्क्रीन पर है अगर आप नोट्स लेना The चाहते हैं. first reason for him to write this letter was to answer some questions. और जो पहला मकसद था इस खत को लिखने का कि कुछ सवालों का जवाब दिया जाए. As believers, we should have some questions about Scripture. ईमानदार होते हुए हमारे पास भी कुछ सवालात होते We हैं. should have questions. और हमारे पास सवाल होने भी And we चाहिए. should be able to go to God's word for the और answer. हमें भी खुदा के कलाम की तरफ जाना चाहिए कि उनका जवाब हासिल कर We सकें. should not be just walking in our lives with ignorance towards God's word. और हमें जो है इस तरह से खुदा की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए कि हम ना इल्मी में खुदा की तरफ बढ़े. And so they wanted to ask them about biblical marriage. और वो जो है वो उनसे बात करता है जो है वो जो बाइबली शादी है उसके He बारे में. wanted to talk about liberty that is given to a believer. और वो उस आजादी की बात करता है जो एक ईमानदार को दी जाती है. Spiritual gifts are talked about in this particular epistle. इस खत के अंदर वो रूहानी नेमतों के बारे में बात करता है. Love offerings and tithes are spoken of in this epistle. और वो हदिये और चंदे की बात करता है. These were the questions that the church had. और ये वो सवालात थे जो चर्च कलीसिया के पास थे. But he also needed to write to correct them. और उसे ये भी करना था कि वो इनका ना सिर्फ जवाब दे बल्कि इनको सही करे. There was division and quarrels within the church. चर्च के अंदर जो है तफरका और झगड़े थे. There was sexual sin within the church. और कलीसिया के अंदर जो है जिनसी गुनाह थे. They were suing each other. और वो एक दूसरे से पर मुकदमे कर रहे They were थे. coming to the Lord's table at the communion, were getting drunk. और वो जब खुदा की मेज पर आते थे तो वो मैं में मतवाले होते. They were misusing the spiritual gifts. और वो जो है रूहानी नेमतों का गलत इस्तेमाल कर रहे And थे. so 5 years this has been going on. और ये 5 सालों से ऐसा चल रहा था. And so Paul is thinking, man, you should have been much more mature by now. और पालूस कहता है कि तुम्हें जो है वो मसीही बलूगत में बहुत बढ़ जाना चाहिए. But you, not only are you paused, but you are retracting now. ना सिर्फ तुम जो है वो रुक गए हो बल्कि तुम पीछे की तरफ जा You're रहे हो. not progressing in faith. तुम आगे अब ईमान में आगे नहीं बढ़ You're रहे. not progressing in Christian तुम maturity. जो है मसीही बलूगत में आगे नहीं बढ़ रहे. You're not progressing in faith and love. और तुम जो है ईमान और मोहब्बत में आगे नहीं बढ़ रहे. And so Paul has to sit down and pen this letter to और them. पालूस को बैठना पड़ा और ये खत लिखना पड़ा. Now he is going to talk about some of those reasons. और ये जो है और भी हैं जो कुछ वजूहात है जो उसने लिखी They're हैं. going to start from verse 10 onwards. और वो जो है वो 10वीं आयत से उनका आगाज We're होगा. only looking at the first 9 today. आज जो है हम सिर्फ पहली 9 आयत का मुताला Now कर Paul रहे हैं. has a lot of ground to cover. और पालूस के पास बहुत कुछ था जो उसका जवाब देना था. But as we get started, I want us to pay careful attention to the words he uses in the beginning. और जब हम आज इस सिलसिले का आगाज कर रहे हैं तो हमें जो है बड़ी ध्यान के साथ उन अल्फाज की तरफ गौर करना है जो उसने इस्तेमाल किए हैं. These aren't just mere words of Paul. ये सिर्फ जो है पालूस के अल्फाज नहीं These हैं. are the inspired words of the Holy Spirit. ये वो कलाम है जो पाक रूह की तहरीक से This लिखा is the गया. breath of God that God is projecting through Paul. और ये खुदा की वो सांस है जो पालूस के वसीला से खुदा जाहिर कर रहा So है. let's tune in and go to verse 1. आइए हम जो है वो पहली आयत को देखते हैं. Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus. पालूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से यीशु मसीह का रसूल होने के लिए बुलाया गया है. I love the strength and clarity of Paul in his self-understanding. मैं जो है मुझे इसकी जो इसकी सफाई है इस आयत में जो पालूस की जो समझ और सफाई है मुझे इसके बारे में बड़ी खुशी है जिस तरह से वो लिखता है. He has a clear stand on his self-understanding. और उसको जो है वो अपनी जो है वो बड़ी अच्छी तरह से उस बात की समझ है जो वो लिख रहा है. He knows who he is. और वो जानता है कि मैं कौन हूं. He writes, I'm Paul. वो लिखता है कि मैं पालूस हूं. That's a
a lot of confusion in today's world. आज जो है दुनिया के अंदर बहुत जो है परेशानी We है don't really know who we are. और हम में से अक्सर नहीं जानते कि हम कौन हैं। We put on a little bit of makeup हम जो है थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं and we think we're Aishwarya Rai. और हम समझते हैं कि मैं ऐश्वर्या राय की तरह दिख We रही get हूं our hair cut a certain way और हम जो है अपने बालों को काट लेते हैं and we think we're Van Diesel. और हम समझते हैं कि हम Wait, he वैन doesn't डीजल have की तरह लिख रहा हूं। hair. Van Diesel doesn't have hair. But Paul knows who he is. लेकिन पालूस जानता था कि वो कौन है And he knows why he is here. और वो भी ये जानता था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। He says, I'm here to be an apostle of Christ Jesus. और वो कहता है कि मैं मसीह यस्सु का रसूल हूँ I'm here to be an ambassador of Christ Jesus. जो मैं जो है खुदावन यस्सु मसीह का एलची हूँ। I'm here to be a spokesperson of Christ Jesus. मैं जो है खुदावन यस्सु मसीह का नुमाइंदा हूँ। And not only does he know who he is, अब ना सिर्फ ये जानता है कि वो कौन है not only does he know why he is where he और is, ना सिर्फ ये वो जानता है कि वो यहाँ पर क्यों है but he also knows how he got there. और वो ये भी जानता है कि वो इस जगह पर कैसे पहुंचा। He says, by the will of God. वो कहता है खुदा की मर्जी के वसीला से। In Paul's 13 letters, पालूस के 13 खतूत के he अंदर almost always begins by telling us who he is in relation to God. और उन 13 के 13 खतूत में हमेशा वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि मैं कौन हूं In relation to God. और खुदा के साथ मेरा ताल्लुक जो है वो किस तरह से And है। he encourages us to know who we are in relation to God. और इसी तरह वो हमें भी हमारी भी हौसला अफजाई करता है कि हम भी अपने आप को खुदा के ताल्लुक के वसीला से जाने। This is very different in the world we're living in. और ये इस दुनिया के अंदर जो है वो बड़ा मुश्किल है कि हम इसको जाने। Everything around us wants us to identify ourselves, define ourselves, get the meaning of our life and our relationship based on what we have. और जो जिस दुनिया में हम रहते हैं और जिस हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं वो उन सारी चीजों के पस मंजर में हम अपने आप को देखते हैं। In relation to the friend circle we have. हम जो है अपने जो दोस्तों के पस मंजर में अपने आप को देखते हैं। In relation to the associations we have. हम अपने साथ उन लोगों के साथ जिनके साथ ताल्लुक है उसके पस मंजर में In अपने आप को relation देखते to हैं। our family. अपने खानदान के पस मंजर में हम अपने आप को देखते In हैं relation to our body. और हम अपने जिस्म के पस मंजर में अपने आप को देखते हैं। This is what the world around us pushes us to think. और यही जो दुनिया है हमें इस तरफ रागब करती है हम इसी बात को सोचें। You are what you are based on what you have. और जो आप हैं वो है क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द है। You are what you are because of who you're around. और आप जो है वो है जो आपके चौगिर्द है। You are who you are because of your family. आप जो है जो वो है क्यों जो अपने खानदान की वजह से। You are who you are because of your physical appearance. आप जो है वो है क्योंकि आपकी जो है वो जाहिरी शक्लो सूरत की But वजह the से। Bible insists लेकिन जो है बाइबल इस बात पर इसरार करती है that we give things their true meaning in relation to God. और हमें जो है खुदा के साथ ताल्लुक में इस हकीकी मानी को जानने की जरूरत है। Bible calls us to define everything in relation to God. और जो बाइबल है हमें हर उस बात के बारे में सही बताती है जो खुदा के साथ हमारा ताल्लुक The है। Bible calls us to put God at the center of our self-understanding. और जो बाइबल है हमें इस काबिल बनाती है कि हम मसीह खुदा बाप को अपना मरकज बना सकें ताकि उसके कलाम को समझें। Now Paul knows who he is. और पालूस जानता था कि वो कौन है He knows where he comes from. और वो ये भी जानता था कि वो कहां से आया है He knows he comes from God. और वो जानता था कि वो खुदा की तरफ से आया He है doesn't come on the basis of a church sending him. और वो इस बिना पर नहीं आया था कि उसे कलीसिया ने भेजा है। He doesn't come because of the association of the denomination he's coming from. वो इस बिना पर नहीं आया था कि किसी डिनोमिनेशन ने उसको भेजा He है knows where he's coming from. और वो जानता था कि वो कहां से आया है He's coming from God. कि वो खुदा से आया है He knows where he's going. और ये भी वो जानता था कि वो कहां जा रहा है He's going to go speak the truth. और वो जानता है कि वो सच्चाई की बात करने जा That's रहा है where he's going. और इसीलिए वो जा रहा था। Whether that is Ephesus or Corinth or Rome or Thessalonica. चाहे वो इफिसस हो थेसलोनिके हो या जो है वो कोई और शहर हो Because he knows where he's going. क्योंकि वो जानता था कि वो कहां जा रहा है And he knows who he is. और वो ये भी जानता था कि वो कौन है That I'm Paul. कि मैं
मैं पौलुस हूँ। I'm Paul, the one who has a thorn on my side. अब मैं वो पौलुस हूँ जो जिसके एक जो कांटा सा चुभता है, I'm Paul who is being poured out like an offering. और मैं वो पौलुस हूँ जो मैं अपने आप को जिसने कुर्बान कर रखा है खुदा के I'm लिए। Paul who wrestles with wanting to do right, but evil is happening. मैं वो पौलुस हूँ जो हर वक्त एक कुश्ती में रहता है ताकि सही कर सकूं। I'm Paul who has a zeal to tell others about Jesus. मैं पौलुस हूँ, मेरे अंदर वो जोश है कि मैं यीशु मसीह के He बारे में बता knows सकूं, who he is. क्योंकि वो जानता था कि वो कौन है, He knows where he's coming from, और वो ये भी जानता था कि वो कहाँ से आया है, and he knows where he's going. और ये भी वो जानता था वो कहाँ जा रहा है। These are three important questions every one of us must know. ये 3 अहम सवाल हैं कि हम में से हर एक को ये पूछने चाहिए अपने आप से। I believe God wants every one of his children to have this kind of solid and clear self-understanding. और खुदा चाहता है कि हर उसका बेटा और बेटी उसके पास ऐसी ही वाज़िया तौर पर समझ हो। We need to have the right self-understanding, church. और हमें चाहिए कि अपने आप से ये हमारे अंदर ये समझ हो खुद से। So I want to try this exercise. मैं जो है एक मश्क करना चाहता हूँ। So instead of Paul, why don't you insert your name? जो है पालूस के नाम की जगह आप अपना नाम वहां पर जो And क्यों then where नहीं it दर्ज says करते, called by the will of God to be, and whatever your profession is. और जहां पर लिखा है कि पालूस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से रसूल होने के लिए बुलाया गया है, उस जगह पालूस की And जगह at पर the आप end अपना नाम लिखें। of Christ Jesus. It'll go something like this. और ये इस तरह से होगा। I'll use Atif as an example. ओके, Atif, called by the will of God आतिफ खुदा की मर्जी से जो बुलाया गया है to be a Bible teacher ताकि वो एक बाइबल का उस्ताद हो, for the glory of Christ. ताकि खुदा के जलाल के लिए। Now you try that. आप जो है वो अब आप कोशिश करें। So whether you are a teacher, आप चाहे उस्ताद हैं, whether you are a nurse, चाहे आप नर्स हैं, whether you're an IT professional, आप जो है IT प्रोफेशनल हैं, whether you manage, जो आप जो है वो इंतजाम करते हैं, whether you drive professionally, और चाहे आप ड्राइवर हैं, you are called by God to do it. और आप जो है खुदा के नाम से बुलाए गए हैं, You're called to do it for the glory of Jesus. और आप इसलिए बुलाए गए हैं कि ये सब कुछ खुदा के जलाल के लिए करें, You're called by God to do it. और ये आप खुदा के वसीला से बुलाए गए हैं कि ये आप करें, You're called for the glory of Jesus. और आप जो है मसीह के जलाल के लिए बुलाए गए हैं। Amen. आमीन। That's having a right understanding of self. और ये वो सही समझ है जो हम रखते हैं। There's a lot of stability that comes in our life और बहुत सारी जो है वो जो है चीजें जो हमारी जिंदगी में आती हैं when we let the Bible define who we are in relation to God. और जो है हम अपने आप को पाते हैं कि खुदा के कलाम की रोशनी में कि हम कौन हैं। We're not easily tempted. We're not broken. We're not shattered by every temptation. और जो है हम जो है हर आजमाइश में जो है वो जो है तोड़े नहीं जाते या शिकस्त नहीं खाते, Because we already know who we are. क्योंकि हम जानते हैं कि हम कौन हैं, We already know where we come और from. हम जानते हैं कि हम कहाँ से आए And हैं, we know where we're और going. हम जानते हैं कि हम कहाँ जा The रहे हैं। most distracted or the most tempted? और जो सबसे जो है वो हमारा ख्याल जो है इधर उधर कर देती है और आजमाती है बात, The most distracted or the most tempted? ओके जो सबसे जो हमारा ख्याल को इधर उधर ले जाती है वो सबसे बड़ी आजमाइश है। And so these 9 verses, ये जो पहली 9 आयात हैं, they help you know who you are in relation to God. और ये आपकी जो है वो मदद करती हैं इस बात को जानने के लिए कि मैं मसीह में कौन हूँ। And that's what we're going to try to help us do today. और यही जो है आज हम करने वाले हैं, We're going to define who we are. और हम ये आज जानेंगे कि हम कौन हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन। We may have a lot of understanding of who we are, हम हो सकता है कि हमें बहुत समझ हो कि हम कौन हैं, but let's let the Bible define it in relation to God. लेकिन आज बाइबल को मौका दें कि वो आपकी इस समझ को आपको बताए। Now, as Paul's writing this introduction, और जब पालूस जो है इस तारुफ को लिख रहा था, he kind of is looking back and defining when the church became believers. और वो उस बात उसके जो पस मंजर में ये था कि चर्च को जब कायम किया गया और जब उसने कलीसिया की बुनियाद रखी, And then at the same time, he'll end by talking about the position of the church to come.
और वो जो है इस बात के बारे में भी अब बात कर रहा है, इस साथ ही साथ जो चर्च की जो पोजीशन है जो आने वाले में So he's दौर में going to answer two very important questions. इस तरह से वो दो अहम सवालों का जवाब दे रहा था। What happened in the past that made them believers and Christians? और माजी में क्या ऐसा कुछ हुआ था कि वो कलीसिया बनी और मसीही And बने, what's going to happen in the future that's going to keep them Christians and और believers? और मुस्तकबिल में क्या होगा ऐसा कि वो मसीही इसी ईमान में कायम रहे। So let's go ahead and answer that. Verse 2, let's go quick. और आइए हम जो है आयत नंबर 2 की तरफ चलते हैं। To the church of God which is at Corinth and those sanctified in Christ Jesus, called to be saints, together with all those who in every place call on the name of the Lord Jesus, both their Lord and ours. खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए हैं, उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावन यीशु मसीह का नाम लेते Two हैं। things are listed here that happened और दो चीजें हैं ये जो यहाँ पर बयान की गई है जो वाकया हुई हैं that made them Christians. और जिन्होंने उन्हें मसीही बनाया है। There's going to be a few more we're going to talk about in verse 5 and 8. और जो है 5वीं और 8वीं आयत में कुछ और बातें हैं जिनके बारे में हम But बात let's look करेंगे, at these two things. लेकिन हम जो है ये पहली दो बातों They पर were गौर करेंगे sanctified in Christ क्योंकि Jesus वो है खुदावन यीशु मसीह में पाक किए गए हैं and they were called saints. और उनको जो है मुकद्दस किया गया And है। so we have to think sanctified in Jesus. और हमें अपने आप को सोचना है कि हम पाक किए गए हैं मसीह यीशु में। How is this church sanctified in और Jesus? ये किस तरह से ये चर्च ये कलीसिया जो है मसीह में पाक की गई थी। Now look at me. Usually when we think about sanctification, जो अमूमन जब हम पाकीज़गी के बारे में सोचते हैं we think of that as a lifelong process. और हम समझते हैं कि ये बहुत ही जो है उम्र भर वाला अमल है And that we accepted Jesus और हमने खुदावन यीशु मसीह को कबूल and किया all our life God is sanctifying us. और जो हमारी पूरी जिंदगी में खुदा हमें पाक करता जा And रहा that है is true. और ये सच है। But here Paul is saying और लेकिन पालूस यहाँ पर कह रहा है sanctification happened as an event in the past और also. जो पाकीज़गी का अमल है वो जो है माजी में उस वक्त हुआ था। Now keep in mind where Paul is wanting to take the church. और अब इस बात को ज़हन नशी करें कि पालूस कलीसिया को कहां पर ले जा रहा है। They're living in sin. जो है वो गुनाह में रह रहे हैं They are corrupt in the works of the Holy Spirit. और वो जो है पाक रूह के कामों को खुद करप्ट कर चुके हैं They are mishandling the gifts of the Spirit. और उन्होंने जो पाक रूह की जो नेमते हैं उनका गलत इस्तेमाल There's किया sexual immorality in the church. और उनमें जिनसी बदकारी है, There's drunkenness in the church. वो शराब में मतवाले हैं And Paul begins by saying, you are sanctified in Jesus. और पालूस उनको कह रहा है कि आप मसीह यीशु में पाक किए गए। That makes no sense. ये हमें बिल्कुल इस बात की समझ नहीं आती Because we would think sanctification is a process. और हम समझते हैं कि एक पाकीज़गी का एक अमल है, But when we're looking at this verse, लेकिन जब हम इस आयत की तरफ देखते हैं, Paul's teaching us जब पालूस हमें जो सिखा रहा that है behind and beneath this lifelong process, और ये जो इस जो उम्र भर का जो ये अमल है, there's something significant that happens in our life. लेकिन कुछ ऐसा है जो बहुत ही वाज़िया तौर पर वाक़या Something हुआ है। very noticeable will happen in our और एक life. जो है बड़ी ही काबिले गौर बात वाक़या हुई है Something happens where we begin to change our hearts towards और sin. कुछ ऐसा हुआ है कि हमारे दिल तब्दील होना शुरू हो गए And our hearts begin to align to God. और हमारे जो दिल हैं खुदावन यीशु मसीह के साथ मिल गए हैं That's what made them Christian. और यही वो बात है जिसने उन्हें मसीही बनाया। It's very important we understand that in regards to और self-understanding. ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को अपने लिए भी इसी तरह समझें। Something significant happened सब जो कुछ जो है वो अहम वाकया हुआ है that separated us from the old जिसने हमें पुरानी चीजों से अलग किया है and aligned us to the new. और जो है हमें नई चीजों के साथ That's called मुंसलिक किए। sanctification और यही वो बात है जो कहलाती है in the पाकीज़गी। context of this verse. और इसी आयत की रोशनी में ये बात हमें सिखाती है Look कि ये at बात one more है। verse, एक 1 और आयत Corinthians को 6:9. सॉरी 1 Corinthians 6:9. और पहले हमारे साथ निकालिए पहला करंथियों 6 बाब की 9 आयत। Now this is interesting because he's calling them this while they're still in sin. और वो उनको बुला रहा है जब वो गुनाह के अंदर हैं He's calling them sanctified. और वो उनको कह रहा है आप पाक हो। He's calling them holy वो उनको कह रहा है कि आप पाक हो even though they're living in sin. हालांकि वो जो है गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। They're living in sin. वो जो है वो गुनाह में रह रहे हैं।
But the servant of God is calling them holy. लेकिन खुदा का खादम उन्हें पाक कह रहा है। 1 Corinthians 6:9. पहला करंथियों 6:9 आए। Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, nor will inherit the kingdom of God. As such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus by the Spirit of our God. क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। ना बुतपरस्त, ना जनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावन यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। Here again, एक दफा फिर he's saying you're sanctified. उनको कह रहा है कि आप पाक हैं। But this verse explains it a little differently. लेकिन ये आयत जो है इसको थोड़े मुख्तलिफ तरीके से He said you used to be a certain way. और वो कहती है कि आप ऐसे रास्तों पर पहले चलते थे Your heart used to like certain things. और जो है आपका दिल जो है ऐसी चीजों को पसंद करता Your था heart liked the sins it was indulged in. और वो आपका जो दिल है ऐसे गुनाह को पसंद Your करता था heart enjoyed fornicating and adultery. और जो आपका दिल है जो जनाकारी और बदकारी को पसंद Your करता है heart enjoyed lying and deceiving others. आपका दिल जो है वो झूठ बोलना And he's- और धोखा देना पसंद But करता है then something happened. लेकिन कुछ वाकया हुआ And all of a sudden your heart changed. लेकिन अचानक आपके दिल में एक तब्दीली हो It गई wasn't that all of a sudden you stopped doing those ये things. इसका मतलब ये नहीं कि आपने फौरन उन सब चीजों को All of a करना sudden बंद कर you didn't दिया have craving for those things. और आपके दिल में अब उनके लिए कोई ऐसी It wasn't that all of a sudden you no longer desired or overcame those और things. आपके दिल में ऐसा नहीं है कि कोई उसके लिए ख्वाहिश नहीं है आप But उन he's चीजों saying that something significant की। happened. लेकिन वो कहता है कुछ अहम वाकया हुआ है Now your heart just didn't want to do लेकिन it. अब वो दिल है जो वो नहीं मांग रहा इंसान I have dealt with that in many cases. मैंने जो है बहुत से मैंने इन चीजों के साथ It's डील so किया है। easy to identify when God has worked in someone's life. और ये बहुत आसान है जब खुदा किसी की जिंदगी में काम करता है तो इनको पहचानना It isn't when they have overcome the sin that you can say they're Christians. और ये नहीं कि वो जो गुनाह पर पहले गालिब आते हैं और फिर आप कहते हैं कि वो मसीही हैं It isn't that they stop doing the things that tempted them. और ये नहीं है कि वो उन सारी चीजों पर गालिब आ जाते हैं जो उनको आजमाती हैं It was that their heart towards those things changed. और ये उनका दिल है जो सबसे पहले And that तब्दील होता loved है ones is sanctification. और यही वो अमल है जो उन्हें पाक ठहराता है That is what happens in the life of a believer. और यही है जो एक ईमानदार की जिंदगी में होता है And that's what Paul is reminding them. और यही वो बात है जो पालूस हमें याद दहानी करा रहा He's है not saying, hey, you are all together now. और वो ये नहीं कह रहा कि आपने सब कुछ पा लिया He's है not saying you're all living in peace and harmony now. और अब वो ये नहीं कह रहा कि आप बड़ी सुलह से और अमन से रह He's रहे not हैं saying you're no longer tempted by those temptations अब वो ये now. नहीं कह रहा कि आप आजमाइशों में अब आजमाए नहीं But जाएंगे he said there was a time when you became a believer. लेकिन वो ये कह रहा है कि एक वक्त था कि जब आप ईमानदार बने There was a time when you became a Christian. एक वक्त था कि जब आप मसीही बने And at that very time you were called holy. और उस वक्त जो है आपको Come on, somebody say amen. कोई तो कहे आमीन That should give us this joy and courage. और ये जो है हमें खुशी देता है और You may हमारी be हौसला sitting अफजाई here, you're like, I have not overcome my temptation करता है। yet, आप हो सकता है Pastor. आप कह सकते हैं कि अभी तक मैंने अपनी आजमाइशों पर काबू नहीं पाया I'm not where I would hope I can be. अभी तक मैं उस जगह पर नहीं पहुंचा जहां मुझे होना चाहिए I still wrestle with those sins in my life. अभी तक मैं उन गुनाहों के साथ कुश्ती कर रहा And हूं you very well could still be there. Sorry. You very well still could be there. और हो सकता है कि आप अभी भी उसी जगह पर But the हो question to ask is this: लेकिन जो सवाल जो पूछने की जरूरत has है your heart been changed about that matter? क्या आपका दिल उस बात के लिए Has तब्दील your हो गया heart been sanctified for that? क्या कि आपके ख्यालात उसके लिए पाक हो Has चुके your हैं heart turned from it? क्या आपका दिल जो है वो मुड़ चुका है The flesh may still be weak.
हो सकता है कि जिस्म कमजोर है, but is the spirit being made still alive? लेकिन जो रूह है वो हमें That's the question that we got to address. ये वो सवाल है जो हमें पूछने की And जरूरत so Paul is reminding them, है। और यही वो सवाल है जिसकी पालूस याद दहानी कराता है you're sanctified. कि आप पाक हैं। Could you imagine how they felt when they read that epistle? और आपको अंदाजा है कि जब उन्होंने इस खत को पढ़ा तो वो क्या सोच रहे थे? How their hearts would have just jumped with joy. कि खुशी के साथ उनके दिल किस कदर भर गए थे। Paul has every right to condemn us. पालूस जो के पास वो हर बात थी कि वो उनको मुजरिम He ठहराता could say, you worthless people. और वो कह सकता था कि आप जो है बेकार लोग हैं Even now you have not repented and turned. और जो है अभी तक आपने तौबा नहीं की और वापस नहीं आए। But he reminded them when they became लेकिन Christians. वो उनको इस बात की याद दहानी कराता है And कि God's उस word वक्त is जब आप पाक reminding हुए us also when we और became हमें भी Christians. खुदा आज भी ये याद कराता है कि जब हम मसीही हुए थे, We became true believers हम सच्चे मसीही बने हुए थे when the work of sanctification happened जब जो है पाकीज़गी का अमल हमारी and our जिंदगी में हुआ। heart shifted from the sin. और जो हमारे दिल हैं वो गुनाह से मुड़ गए थे। It wasn't that we stopped sinning. इसका मतलब यह नहीं कि हमने गुनाह करना It बंद wasn't कर that we दिया overcame it. और ये नहीं कि हम गुनाह पर गालिब But what आ I गए। thought about sin, what I thought about sin, जो मैं गुनाह के बारे में सोचता हूँ that certainly changed. अब वो जो है वो तब्दील हो Amen. चुका है। That's a आमीन। good way to examine if we are born again. अगर ये बहुत ही अच्छा मौका है कि अगर हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं तो अपने आप को जांचें How's my heart towards sin? कि मेरा जो दिल है वो गुनाह की तरफ कैसा है। The second thing that happened to the church of Corinth and us that made us Christians और जो दूसरी बात जो है वो जो करंथियों की कलीसिया में हुई और जिसने उन्हें मसीही बनाया they're called saints. और वो जो है वो मुकद्दस लोग कहलाए। Corinth church is called saints. और करंथियों की कलीसिया जो है मुकद्दस लोग कहलाती है। The word for saints is holy. जो लफ्ज जो है वो जो मुकद्दस लोगों के लिए जो लफ्ज है वो है पाक। The English readers, your Bible might say you were called to be holy. The adverb is there, to be holy. और इंग्लिश की बाइबल में लिखा The है verb. कि जो वहां पे जो एडवर्ब है मैं उर्दू में बोल रहा कि आप पाक होने के लिए बुलाए गए। But that is just an insert that the writers have put to make sense of it. और सिर्फ ये जो है वो जो लिखा Translators. जो लिखने के लिए ये सिर्फ इस्तेमाल किया गया। But really it's just called saints. और ये जो है वो असल है कि आप बुलाए गए हैं, पाक बुलाए गए। Paul looks at the church in Corinth and says, you're saints. और पालूस जो है वो करंथियों की कलीसिया की तरफ देखता और वो कहता है तुम पाक हो। Praise God. He's looking at this church. Sorry. There's a man who's living with his dad's wife. इस कलीसिया के अंदर एक ऐसा शख्स था जो अपने बाप की बीवी रखता था। And Paul's like, you're called a saint. और पालूस उसे भी जो है वो मुकद्दस कह रहा है। Saint. मुकद्दस। Calling the believers saints. ईमानदारों को मुकद्दस लोग कहना। The truth is, God never tells sinners to try to become saints. और जो सच बात यह है कि खुदा ये नहीं कहता कि जो गुनाहगार हैं वो मुकद्दस कहलाएं। That they themselves become saints. कि वो खुद से जो है वो मुकद्दस बनने की कोशिश करें। Because you know that's impossible. कि आप जानते हैं कि ये जो है बहुत ये नामुमकिन है। I live with myself. मैं अपने आप में रहता हूँ। I know that I ain't no saint. Sorry? I'm not a saint. मैं जानता हूँ कि मैं जो है वो मुकद्दस नहीं हूँ। I'm nowhere near a saint. ना ही मैं एक उसके करीब तर हूँ। The difference between the sinner जो एक गुनाहगार and saint, एक गुनाहगार और मुकद्दस के दरमियान जो फर्क है, the difference between the sinner and saint is the Savior and his gift of salvation. और जो है एक गुनाहगार और जो एक मुकद्दस शख्स के दरमियान फर्क है वो उसका निजात दहिंदा and the Savior of his salvation and righteousness. और जो निजात दहिंदा है और जो है और रास्तबाजी है। You are a saint, loved ones. आप जो है वो मुकद्दस लोग हैं। Not because you are perfect, इसलिए नहीं कि आप जो है कामिल हैं, but because of your position. बल्कि अपनी उस हालत की वजह से।
We're not saints because we do good things. हम मुकद्दस इसलिए नहीं कि हम अच्छी काम करते हैं, We are saints because we are attached to the one who is righteous. हम Hallelujah. मुकद्दस इसलिए हैं कि हम उसके साथ मुंसलिक हैं जो रास्तबाज We है। are saints not because of what we have overcome. हम मुकद्दस इसलिए नहीं कि हम किसी चीज पर गालिब आ चुके We're हैं, not saints because of the good works that we do. हम मुकद्दस इसलिए नहीं कि हम जो है वो अच्छे काम करते We हैं, are saints because Jesus has declared us saints. Amen. हम मुकद्दस इसलिए हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने And हमें Paul मुकद्दस was कहा। reminding the church of Corinth, and he's reminding us that despite what sin we may be in, God looks at us as saints. Amen. पालूस जो है करंथस की कलीसिया को याद कराता है ये बात, और हमें भी ये याद कराता है कि हम जो भी है खुदावन यीशु मसीह के वसीला से मुकद्दस हैं। We are saints हम जो है मुकद्दस लोग हैं because of Jesus. यीशु मसीह के वसीला से। He who knew no sin, जो गुनाह से वाकिफ ना he था became sin वो हमारे लिए गुनाह so that बना, in him we may have his righteousness. ताकि हम उसमें होकर उसकी When रास्तबाजी God होकर- the Father looks at you and I, जब खुदा बाप आपकी तरफ देखता he है sees saints वो आपको मुकद्दस लोगों की तरह because देखता he sees the blood of his है, son क्योंकि वो upon अपने you. बेटे यीशु का खून आप पर If देखता you were so good, you wouldn't have needed the blood of है। Jesus. अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपको यीशु के खून की जरूरत If ही you नहीं। were perfect, you didn't need the blood of अगर Jesus. आप कामिल हैं तो आपको यीशु के खून की जरूरत But in नहीं। all of your goodness, you still could not be righteous अपनी before God. सारी अच्छे कामों के बावजूद आप मुकद्दस नहीं बन We सकते। are saints and we are righteous because of Jesus Christ. Somebody हम say मुकद्दस लोग हैं amen. और रास्तबाज हैं खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, That's the truth. और ये सच्चाई है। We are called saints. और हमें जो है वो मुकद्दस लोग बुलाया गया, God picks us up from the dirty mud और खुदा ने जो है वो गंदी मिट्टी से कुछ लिया, and he stands us on the rock, Jesus. और जो है उसने खुदावन यीशु मसीह जो चट्टान है उस पर हमें But let's not misunderstand this. ये, लेकिन हमें इस बात को जो है वो हमें गलत नहीं समझना चाहिए। The biblical idea of holiness means that we want to live our lives in a way that pleases the holy God. और जो बिब्लिकल जो समझ है वो ये है कि हमें अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारनी चाहिए जो खुदा जिससे खुश हो सके। The word holy means set apart. और होली का मतलब पाक करने का मतलब है अपने आप को अलग करना। Is this helping क्या ये आप लोगों की मदद कर रहा है? in self-understanding? और ये जो है अपने आप को समझ रहे हैं? Being saints means being set apart मुकद्दस का मतलब क्या है? मतलब है अलग किया हुआ, and pursuing holiness with joy. और जो है खुशी के साथ जो है पाकीज़गी को Hallelujah. अमल में लाना। हालेलुया। Chasing holiness with joy. और जो है पाकीज़गी की तरफ जाना खुशी I के want साथ। you to think about a guy who runs a race. और मैं जो हूँ चाहता हूँ कि आप उस शख्स की मानद सोचे जो एक दौड़ में है, And at every start, the people say, "You're a loser." और जो है हर आगाज पर उसे कहते हैं कि तुम जो है वो हार जाओगे। Think of how he will run that race. और आप सोचे कि वो कैसे वो दौड़ को जीतेगा। But now on the other side of the race, लेकिन जो दौड़ की दूसरी तरफ, there is someone getting ready to run और जो है वो दौड़ने के लिए कोई तैयार है, and someone tells him, "You will win, son. और उसको दूसरा वो शख्स बोलता है कि You were made for बेटे this." तुम जीत जाओगे और तुम ये कर लोगे। How do you think he will run? और आप कैसे समझते हैं कि वो कैसे दौड़ेगा? We will pursue holiness very differently. हम जो है जो पाकीज़गी को बड़ी मुख्तलिफ तरीके से समझते If हैं। we understand that we've already been declared holy in अगर हम Jesus, समझ जाएं कि खुदावन यीशु मसीह में हम पहले ही से I पाक don't हैं। have to live or act holy. अब मुझे जो है रहने और पाक जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं। I just have to live in Jesus. मुझे जो है सिर्फ खुदावन यीशु मसीह में रहने की And जरूरत because he is holy, है। क्योंकि वो पाक है and because I will have his mind, और मेरे पास उसका जहन है, I will live holy. और मैं जो है पाक Are जिंदगी we बसर करूंगा। understanding? Somebody say amen. कोई तो कहे आमीन। Ephesians 5:3, quickly go there. आप मेरे साथ निकालिए इफसियों का खत 5 बाब और उसकी 3 आयत। But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named amongst you, as is proper amongst saints. और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है कि तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। Only one verse. Yeah. When we were young, Sorry. जब जब मैं नौजवान था, जब हम नौजवान थे, if my brother or I were planning on going out at night, मैं और मेरा भाई जो है हम रात को अक्सर जो है बाहर निकल जाते थे।
No, if we were planning. Okay. हम जो है अक्सर जो है वो मंसूबा बनाते थे कि हम बाहर I जाएंगे. mean, I know I'm a saint, but don't put sin on me that I haven't committed yet. मैं मुकद्दस नहीं हूँ, लेकिन उस गुनाह को मुझ पे ना ला दे जो मैंने नहीं किया. You know, right before we would go out, और जैसे ही हम बाहर जाते थे, or if there was a complaint that would come to the house for us, और कोई भी ऐसी शिकायत जो बाहर से वो आती थी, you know, like we were fighting or something, और हम किसी बात पे झगड़ रहे हैं, my mom would always say, मेरी जो वालदा है वो हर वक्त ये बात कहती थी. I'll say it in Punjabi and then Pastor will translate in English. तुसी एक नेक प्यो दी औलाद हो. That's what my mom would tell us. She's like, you know, you're the sons of a very righteous man. You know, a very. आप जो है वो एक जो है रास्तबाज बाप की औलाद है. Yeah. And I used to wonder, और जो है मैं बड़ा हैरान होता था how come moms never say एक नेक माँ दी औलाद हो? कि माँ ये क्यों नहीं कहती कि आप एक नेक माँ की औलाद हैं. No, please don't get me in trouble. Don't. But I always wonder, why do moms like drop it like that, right? और मैं ये अक्सर सोचता था कि माँ ये वाला फिक्रा क्यों नहीं बोलती. And I think the main purpose behind it was this. और मेरा ख्याल है कि जो असल मकसद था इस बात के पीछे, She wanted our behavior to measure to whose sons we were. और वो चाहती थी कि हमारा जो रवैया है उसका मेयार जो है वो हमारे बाप के रवैये के साथ है. And God is saying the same to each one of और us. हम जो खुदा भी जो है आप सब से ये बात कहता है, You are saints. आप मुकद्दस लोग हैं, Live to my glory. मेरे जलाल के लिए जिंदा Let me echo that again in your hearts. मुझे दोबारा इस बात को कहने दो You are कि saints. आप मुकद्दस लोग हैं, Live to the glory of your Father. खुदा के जलाल के लिए जिंदगी बसर Everyone look at me. I want to make eye करें. मैं contact. चाहता हूं कि हर कोई मेरी तरफ You देखे are कि saints. आप सब लोग मुकद्दस हैं. Live to the glory of your Father. अपनी जिंदगी खुदा के If जलाल के लिए your बसर heart करें. was nudged at a time और अगर आपके दिल पर चोट लगती and है it separated from the ways of sin, और ये आपको जो गुनाह के तरीके हैं उनसे you अलग were करता है, already declared sanctified. आप जो है आपने पहले से पाकीज़गी And पा ली you है. are saints in his sight. Someone say और amen. आप उसकी नजर में मुकद्दस हैं, कोई तो कहे आमीन. That's where we get our self-understanding, loved और ones. यही वो मुकाम है जहां पर हम अपने We are समझ मिलती है. sanctified. हम जो है पाक किए गए We हैं are being sanctified. और हम जो है पाक किए जा रहे And हैं we are saints. और हम जो है मुकद्दस किए Now हुए लोग. Paul's going to continue with his personal greeting. Let's go to verse 3. अब जो है पालूस जो है वो सलाम के बाद जो है वो आगे चलता है और हम तीसरी आयत I'm पर going to जाएंगे. start piling up the verses together so we get done in time. और मैं जो है वो जल्दी कर रहा हूं कि ताकि हम So he टाइम से says, खत्म करें. grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. हमारे बाप खुदा और खुदावन यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान This हासिल is होता है. Paul's typical greeting. और ये जो है पालूस की जो है अमूमन पालूस इसी तरह जो है वो सलाम The लिखता था. Greek greeting that is grace and the Hebrew greeting that is Irene, he's combining those, which means peace. He's combining those together. जो इब्रानी जो थी सलाम था वो जो अमन का सलाम इत्मीनान का सलाम था और जो यूनानी सलाम था वो जो है वो फजल का सलाम था और पालूस इन दोनों को इकट्ठा बयान But करता the emphasis is this, था. और लेकिन जो इस बात पर जोर था that both grace and peace only come from God. और ये वो इस बात पर जोर था कि फजल और इत्मीनान दोनों खुदा की तरफ It से आते only हैं. comes through Jesus. और ये खुदावन यीशु मसीह के वसीला से Verse आते हैं. 4. और चौथी आयत में I लिखा है, thank my God always concerning you. और मैं तुम्हारे बारे में खुदा का उस फजल के बायस जो मसीह यीशु में है तुम पर हुआ हमेशा खुदा का शुक्र I'm करता probably going to end it on this verse, हूं. अब जो है इस आयत पर हम खत्म करेंगे. but let me take the time to go through this. लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त दे के मैं इसको I बयान कर सकूं. thank God always concerning you. मैं खुदा का हमेशा इस बात के लिए तुम्हारे लिए शुक्र करता हूं. Paul has a list of things he's going to talk about in the next 15 chapters. और पालूस के पास एक बड़ी लंबी फहरिस्त थी जो अगले 15 बाबों में जिस वो बात करने वाला था. He's going to come down with a strong hand on और them. वो जो है वो बड़ी सख्त चीजें उन्हें लिखने वाला था. But before he gets there, लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर पहुंचे he reminds them वो उनको याद कराता है, that I thank God for you. मैं खुदा का तुम्हारे लिए शुक्र करता हूं, I pray for you. मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं. Before the correction, he's reminding them. उनको दुरुस्त करने से पहले वो उन्हें याद दिलाता है.
that I pray for you. कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ. You know, in 2 Corinthians, if we get there in chapter 10, it talks about how these people didn't really respect him. और अब दूसरे करंथियों के 10वें बाब में जब अगर हम देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं वो उसकी उस तरह से इज्जत नहीं करते थे. They thought very little of Paul. और वो जो पालूस के बारे में बहुत जो है वो छोटा सोचते थे. Yet he prayed for them. लेकिन वो फिर भी उनके लिए दुआ करता है. There's something to learn here. और ये हमें यहाँ पर कुछ सीखने की जरूरत है. These people are acting very poorly. और ये जो है वो ये इन लोगों का जो रवैया है वो अच्छा ना था. Yet Paul is praying for them. लेकिन पालूस फिर भी उनके लिए दुआ करता है. Now let me speak to you not as a pastor but as a brother in Christ. मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ एक खादम होते हुए नहीं बल्कि एक भाई होते हुए. As a husband, as a father, it's easy to pray for your spouse and your children when they're acting right. और एक बाप होते हुए एक शौहर होते हुए ये बहुत आसान होता है कि जब आपके ख़ानदान में लोग चीज़ें सही कर रहे हैं तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हैं. It's so easy to pray for them. ये बहुत आसान है उनके लिए दुआ करना. It's so easy to thank God for them. और ये बहुत आसान है कि उनके लिए खुदा का शुक्र Oh, करना. I thank you, God. My children have all A's. और मैं खुदा तेरा शुक्र करता हूँ अपने बच्चों के लिए. I thank you, God. My wife makes good food right on time. और मैं खुदा तेरा शुक्र करता हूँ कि मेरी बीवी वक्त पर अच्छा खाना बनाती है. When things are going good, it's good. It's easy. और जब चीजें अच्छी हो रही होती हैं तो ये आसान होता है. But there comes a time लेकिन वक्त आता है that they learn to master identifying and getting on your last nerve. और वो ऐसा भी कि हुआ वक्त होता है कि वो आपके जो है वो आपको गुस्सा दिला देते हैं. They just learn it. और ये जो है आप ये सीखते हैं. It's really hard to pray at that time, isn't it? और उस वक्त में दुआ करना वाकई बड़ा मुश्किल है. Or yet, if someone becomes rebellious, और उस वक्त जब कोई बागी रवैया रखे it's hard to pray. और उसके लिए दुआ करना बहुत मुश्किल Now, I say that with humor, है. मैंने ये मजाक से ये बात कही but there is a lot of seriousness here. लेकिन यहाँ पर बहुत ही जो है वो गहरी बातें. What is our response when people act up? और हमारा जो है रवैया कैसा होना चाहिए जब लोग हमारे साथ ऐसा करते When people act wrong, हैं, जब लोग गलत करते हैं, when people bear bad witness. और जब जो आपके बारे में गलत बातें कहते And हैं. Paul is saying, I give thanks for you, I pray for you. और पालूस कहता है कि मैं खुदा के लिए आपका शुक्र करता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ. Don't ever let yourself come to that place अपने आप को कभी भी इस जगह पर मत आने दें where you think someone is not good enough for your prayer. और जो आप ये सोचें कि मेरी जिंदगी में इस शख्स को मेरी दुआ की जरूरत नहीं है. That they're not good enough for your और prayer. वो इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं उनके लिए दुआ I've करूं. learned this in my life, मैंने ये अपनी जिंदगी में सीखा है that praying for folks keeps my heart very soft towards them. और ऐसे लोगों के लिए जब मैं दुआ करता हूं तो ये मेरे दिल को जो है वो बड़ा नरम Let me रखता है. encourage the husbands who are sitting and even watching online. और मैं उन जो है वो शौहरों को भी इनकरेज करना चाहता हूं जो यहाँ बैठे और ऑनलाइन Pray देख for रहे हैं. your wife daily. अपनी बीवी के लिए हर रोज दुआ करें. Thank God for your spouse daily. अपने साथी के लिए हर रोज खुदा का शुक्र Thank करें. God for their sacrifice. उसकी कुर्बानी के लिए खुदा का Thank शुक्र God करें. for their life. उसकी जिंदगी के लिए खुदा का And शुक्र करें. speak a blessing over them. और उसकी जिंदगी के लिए बरकत की To the बात करें. sisters who are married, who are wives, I speak to you now. वो बहनें जो शादीशुदा हैं और वो बीवी हैं, Do the same. मैं आपसे भी बात करता हूं और कहता हूं ऐसा ही Thank करें. God for your husband daily. अपने जो है शौहर के लिए हर रोज खुदा का शुक्र करें. Thank God for the sacrifice you see and you don't see daily. और जो उन सारी कुर्बानियों के लिए जिनको आप देखती हैं या नहीं देखती उसका शुक्र करें. don't come to me after church and say, Padri Saab, my husband's not acting right. I can't pray for them. और मेरे पास इस इबादत के बाद ना आए और कहें कि पादरी साहब मेरा जो शौहर है वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा. I can't pray for them. और मैं उसके लिए दुआ नहीं कर सकता. Corinthian church wasn't acting right. जो है करंथियों का जो कलीसिया है वो भी सही नहीं They कर were hurting the heart of Paul. वो पालूस को जो है वो दुख पहुंचा रहे They थे. were dishonoring God. वो खुदा की बेइज्जती कर Yet रहे थे. Paul said, I pray
pray for you regularly. लेकिन पौलुस फिर भी कहता है मैं बाकायदगी से आपके लिए दुआ If करता you हूं। keep praying for each other, loved ones. अगर अजीजों आप एक दूसरे के लिए दुआ करते Husbands, if you keep praying for your wife. रहेंगे, शौहरों अगर आप अपनी बीवियों के लिए दुआ Wives, if you keep praying for your करेंगे, husband. बीवियों अगर अपने शौहरों के लिए दुआ Your करेंगे, heart will stay soft. आपका दिल जो है वो And नरम the हो। devil will not find room there. और इब्लीस को आपके लिए वो इब्लीस को उसमें कोई जगह In नहीं the मिलेगी। next 15 chapters, Paul is going to lay it on them. और जो है अगले 15 बाबों में पौलुस इसी बात का जिक्र करने वाला है। He's going to whip them left, right, and over. वो उनको जो है अगले बाब में इधर उधर से कोड़े मारने वाला है। But he would be disqualified to do that. सॉरी। He would be disqualified to do that unless he began with love and prayer. और वो जो है अगर अब वो इस काबिल नहीं कि वो ये कर सके अगर वो दुआ और मोहब्बत के साथ ये काम We ना are not qualified. Let me speak to someone now. करे। मुझे बात करने दीजिए किसी के साथ। You are not qualified. आप जो है इस काबिल नहीं हैं, You are not fit. आप इसके लिए फिट नहीं And हैं you are not spiritually right और आप जो रूहानी तौर पर to ठीक भी नहीं correct anyone कि किसी को ठीक करें। if you do not have a heart of prayer for और अगर them. आपके पास जो मोहब्बत और If दुआ you वाला दिल can't नहीं pray है, for them, अगर आप उसके लिए दुआ नहीं कर You सकते, can't correct them. उसे सही भी मत I don't care if you bore them out of your womb, moms. ओके मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने वो माँ के पेट ही से आपने They उसको- might be your children. अब वो हो सकता है आपके बच्चे हों They might be the ones you nursed. और जो हो सकता है जिन्होंने आपने दूध पिलाया हो They might be the ones you carried 9 months in your belly. और हो सकता है कि 9 महीने तक We are उस not बच्चों को अपने- qualified to correct them फिर भी जो है हमारे पास ये शरफ नहीं कि हम उनकी unless तारीफ we करें। are willing to love and pray for them. और जब तक कि हमारे पास जो है मोहब्बत और And दुआ ना हो Paul encouraged us this और way पालूस रसूल हमें इसी बात के to लिए the church. इनकरेज करता है सॉरी To the church. कलीसिया के लिए Let us be a congregation that prays for sinners. और हमें ऐसी कलीसिया बनना है जो है वो गुनाहगारों के लिए दुआ कर सके People who are still living in sin. ऐसे लोग जो अभी तक गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं If God has brought you and I out, और खुदा ने अगर मुझे और आपको वहां से बाहर निकाला है He can bring them out. वो उनको भी वहां से बाहर निकाल सकता है Continually pray for them. लगातार उनके लिए दुआ करते Those who हैं are trapped in sin, जो गुनाह में फंसे हुए हैं our Lord is the one who rescues हमारा them. खुदावंद इस काबिल है कि The उन्हें छुड़ा Bible सकता says है He is और faithful. बाइबल कहती है कि वो वफादार है Let's stand to our feet. आए हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएं